So last class mein, we had learned how to, in the last two classes in fact, we had learned how to calculate age adjusted rates. Now in this class we quickly rewind all that we had learned in the last two classes. So we'll summarize it in the steps. What are the steps of calculating age adjusted rate? In the first step, you take the counts, the total. Suppose if you want to calculate age adjusted rate for a specific population for a crude death rate. So age adjusted death rate. You have a crude death rate and you want to convert it to age adjusted death rate for that specific population. Now, first of all, you will calculate the crude death rate for that population. How would you calculate the crude death rate for that population? Total number of death counts upon the estimated mid-year population, that is the total population, but the total population would be the count of the population that would be the estimated mid-year population. That is the population on 1st of July of that year. Okay? If you are calculating before July, that would be the estimated mid-year population. If you are calculating after July, then it could be a real count of population as on 1st July if you have the real count. Or if you do not have the real counts, then you will estimate it based on the previous data. इतना समझ में आ गया आपको? तो क्रूड डेथ रेट कैलकुलेट करने के लिए क्रूड डेथ रेट वो डेथ रेट्स होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर में टोटल पॉपुलेशन को लिया जाता है. यानी टोटल नंबर ऑफ डेथ रेट्स इन अ पॉपुलेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन. दैट टोटल पॉपुलेशन इज द एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन. साल के बीच में जितनी पॉपुलेशन थी, जितनी जनसंख्या थी, उसको हम टोटल पॉपुलेशन लेते हैं, ना कि जनवरी में कितनी पॉपुलेशन थी और दिसंबर में, क्योंकि जनवरी से लेकर दिसंबर के मध्य में पॉपुलेशन चेंज हो जाती है. पॉपुलेशन तो हर क्षण चेंज हो रही है क्योंकि बर्थ हो रहे हैं, डेथ्स हो रहे हैं. तो एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन को हम डिनोमिनेटर में लेते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग क्रूड रेट्स. So crude death rate is total number of death counts upon total population into multiplier. Now multiplier, it depends on the number of deaths. If the number of deaths is bigger, the multiplier would be smaller. If the number of deaths is very less, then your multiplier could be a bigger number. Let's say 1,000 or 10,000 or 1 lakh. Now you want to convert this crude death rate into age adjusted rate for this specific population. To do that, since you want to age adjust this rate, you will have to calculate age specific death rates for each of the various age groups that you want to account for. So you will need to divide your population into specific age groups in which there is a difference in the population structures of two populations. And those age groups, amongst those age groups, how many people have died upon the population of that specific age group. So you will calculate age specific death rates for each of the age groups that you've taken into this study. After calculating the age specific death rates, you have already gone through this process. For example, age specific death rate for 0 to 4 years population. So all those that fall in the 0 to 4 years population group, how many died in that age group upon the total population of that age group. Okay, so this will be the age specific death rate of 0 to 4 years. Once you've calculated age specific death rates for all the age groups that you are taking into this study, you will then multiply each of these age specific death rates with the weighted proportion of these age groups in the standard population. Now the standard population is a population in which the count of each of the age groups is precisely known. So let's say we take the 2011 census as a standard population. So we know in 2011 how many people fell in 0 to 4 years age group, how many people fell in 5 to 14 years age group, how many people fell in 15 to 24 years age group. So after calculating the weighted proportion of each of these age groups in the standard population, these weighted proportions for each of these age groups is then multiplied with the age specific death rates of each of these the present population for which you are trying to calculate the age adjusted death rate. Once you multiply the age specific death rate for each age group with the weighted proportion of that age group in the standard population, you get the
age adjusted death rate for that very age group, and after summing up all the different age adjusted death rates, each of the age groups get the age adjusted death rate for the total population. Okay, is that clear? Is that clear? इतना समझ में आ गया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये समझ, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एज एडजस्टेड डेथ रेट कैसे निकालेंगे? ये तो हो गई एक एज पॉपुलेशन के लिए एज एडजस्टेड डेथ रेट। ऐसे ही आपके पास दूसरे पॉपुलेशन के लिए भी एक क्रूड डेथ रेट आया होगा। क्रूड डेथ रेट्स को आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते अगर पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, इफ the population structures differ in terms of age, if the population structures differ in terms of sex, if the population structures differ in terms of race or ethnicity or any other variable that you're trying to compare for, or attribute the cause of the death for, you will not be able to compare use crude death rates for comparing. Only if the population structures of two different populations are similar, then only you can use crude death rates to compare the death rates of those two populations to calculate the relative risk of death in those populations. So if you want to calculate the relative risk of deaths in two different populations, you will have to adjust the death rates according to age or sex or race, depending upon which variable is confounding the value of the death rate. इतना समझ में आ गया आपको? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बता दीजिए, अभी पूछ लीजिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है? एज एडजस्टेड डेथ रेट जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है एज एडजस्टेड डेथ रेट कैलकुलेट करने में? नो मैम। ओके ओके, ठीक है। तो अब हम स्पेसिफिक रेट्स की तरफ बढ़ते हैं। So I presume that this is clear to all of you. Now, specific rates measure morbidity and mortality for particular populations or for particular diseases. Specific rates को विशिष्ट दरें भी बोलते हैं हिंदी में। ये एक विशेष जनसंख्या के लिए या किसी विशेष बीमारी के लिए जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट्स कैलकुलेट किए जाते हैं उनको हम विशिष्ट दरें या विशेष दरें बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एज एडजस्टेड डेथ रेट कैलकुलेट करते वक्त आपने एज स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट की थी ना, हर एज ग्रुप के लिए 0 to 4 years के लिए एज स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट की थी। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन द 0 to 4 years एज ग्रुप अपॉन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 0 to 4 years एज ग्रुप इनटू मल्टीप्लायर। दिस वाज द एज स्पेसिफिक डेथ रेट of 0 to 4 years age group. So this is a specific rate, specific mortality rate, specific death rate. ये age specific death rate, ऐसे ही sex specific death rates भी calculate कर सकते हैं। सिर्फ specific death rate सिर्फ mortality के लिए नहीं होती है, they can also be for morbidity, that is for different diseases. For example, how many people are suffering from diabetes? Okay, so this is a specific morbidity rate. So, which means that how many people died due to diabetes? So this is a cause-specific mortality rate. So number of people who died because of diabetes upon the estimated mid-year population into the multiplier. This would be cause-specific death rate. एक बार फिर से हिंदी में बता देती हूँ आप लोगों को जिनको ये समझ में नहीं आया है। तो स्पेसिफिक डेथ रेट्स बीमारी और मृत्यु की दरें होती हैं जो कि किसी विशेष जनसंख्या या किसी विशेष बीमारी के लिए स्पेसिफिकली कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट जो कि आपने एज एडजस्टमेंट के दौरान कैलकुलेट किया भी था, एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप 20 से 40 वर्ष की आयु के लोगों में डेथ रेट क्या है ये जानना चाहते हैं। तो इसके लिए आप 20 से 40 वर्ष की आयु के लोगों में पिछले साल मृत्यु हुई वो लेंगे टोटल डेथ काउंट अमंगस्ट द एज ग्रुप ऑफ 20 to 40 year olds अपॉन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द एज ग्रुप 20 to 40 year old into your multiplier.
this would be age specific death rate of 20 to 40-year-olds. So this is an age specific mortality rate. So this will be obtained by dividing the number of deaths in that age group. उस age group में कुल मृत्यु की संख्या, उसको आप डिवाइड करेंगे मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट एज ग्रुप, यानी 20 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों की कुल जनसंख्या वर्ष के मध्य में उस वर्ष में या उस टाइम पीरियड में कितनी थी, उससे जब आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मल्टीप्लायर आप कुछ भी ले सकते हैं, 100,000, 10,000, 1 lakh, depending upon the total number that you're getting. If the number is too small, multiplier would be big. If the number is bigger, then the multiplier would be smaller. ऐसे ही आप रेस और सेक्स स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी फीमेल्स में क्या मृत्यु दर है, मेल्स में क्या मृत्यु दर है, अलग अलग रेसेस में क्या मृत्यु दर है, एथनिसिटी में क्या मृत्यु दर है, किसी स्टेट में क्या मृत्यु दर है. तो अलग अलग पैमानों पर जब आप किसी विशेष जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन को नहीं लेते हैं डिनोमिनेटर में, किसी विशेष जनसंख्या या किसी विशेष बीमारी के लिए जब आप मृत्यु और बीमारी की दरें कैलकुलेट करते हैं तो उनको स्पेसिफिक मोर्बिडिटी या मोर्टालिटी रेट बोलते हैं. एक ऐसा ही खास तरीके का एक स्पेसिफिक रेट है. सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक रेट्स इज कॉस्ट स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट, जिसके बारे में मैं अभी बता रही थी. CSMR भी उसको बोलते हैं. CSMR measures the death rate for a specific disease. किसी एक पर्टिकुलर बीमारी, किसी एक विशिष्ट बीमारी के विषय में जो डेथ रेट, बीमारी से होने वाले मृत्यु दर को जो कैलकुलेट करता है उसको कॉस्ट स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट बोलते हैं. नाउ दिस रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ डेथ्स. ध्यान रखिएगा, डिवाइडिंग द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज बाय द टोटल पॉपुलेशन. यानी डायबिटीज से होने वाली मृत्यु दर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगी कॉस्ट स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट. डायबिटीज की वजह से मरने वाले लोगों की क्या मृत्यु दर है भारत की जनसंख्या में. तो ये आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कॉज्ड बाय डायबिटीज अपॉन द टोटल. सॉरी मैं ये पूछना चाह रहा था कि कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट में, जी हेलो, जी जी कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट में टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू दैट डिजीज अपॉन टोटल पॉपुलेशन होगा या टोटल नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल बाय दैट डिजीज होगा? नहीं, कॉस्ट स्पेसिफिक वो उस पे मैं जो आप बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय दैट डिजीज, दैट इज अ डिफरेंट रेट. That is a different rate with a different name. Okay, that is called case fatality rate. That is not cause specific mortality rate. I'll come to that later. So cause specific mortality rate takes total population in the denominator, not the total number of affected people by that disease. Okay. Okay ma'am. हाँ, वो जो जिसकी बात आप कर रहे हैं उसको कॉज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट नहीं बोलते, उसको केस फेटेलिटी रेट बोलते हैं. मैं अभी आऊंगी उस पे. जैसे मान लीजिए आप अगर स्पेसिफिक डेथ रेट या कॉज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट फॉर कोविड-19 फॉर एग्जांपल अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कॉज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट फॉर कोविड-19 वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कॉज्ड ड्यू टू कोविड-19 अपॉन टोटल पॉपुलेशन. ओके, इंडिया में अभी तक कितनी कुल मृत्यु हुई है कोविड-19 की वजह से अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इनटू मल्टीप्लायर वुड बी कॉज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट. वेयरएज टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कॉज्ड ड्यू टू कोविड-19 अपॉन, क्योंकि आपने ये जिक्र अभी कर दिया इसलिए मैं अभी बता दे रही हूँ, मैं कुछ 5 मिनट में उसी पे आने वाली थी, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय कोविड-19. जब आप इससे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर, जब आपका टोटल नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय कोविड-19 हो जाएगा और न्यूमरेटर होगा टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कॉज्ड ड्यू टू कोविड-19 इनटू मल्टीप्लायर, दिस वुड बी केस फेटेलिटी रेट. ओके, that is out of the number of cases reported for COVID-19, how many resulted in deaths. Okay? Okay ma'am. Yes or no? Okay? Yes ma'am. Okay. Okay. तो किसी विशेष बीमारी की वजह से होने वाली मृत्यु दर अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो उस बीमारी से होने वाली कुल मृत्यु की संख्या अपॉन को हिंदी में क्या कहते पता नहीं, अपॉन
total population, so total population would be the estimated mid-year population into multiplier. So this would be cause specific mortality rate, CSMR भी short में उसको बोलते हैं. अब जैसे कि इन्होंने अभी जिक्र किया तो मैं बता ही देती हूँ, उसका जिक्र आ गया है. केस फेटेलिटी रेट आगे आपके सिलेबस में है ही, पढ़ाना ही था मुझे, मैं थोड़ी देर में आने भी वाली थी उस पर. तो दो दूसरे स्पेसिफिक रेट्स में ही इनके अलावा एक तो एज स्पेसिफिक रेट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सेक्स स्पेसिफिक रेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉर्बिडिटी स्पेसिफिक रेट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो कॉस्ट स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट ये भी आपको बता दी. ये सारे स्पेसिफिक रेट्स के एग्जांपल्स हैं. ऐसा ही स्पेसिफिक रेट का एक और एग्जांपल है केस फेटेलिटी रेट. सिर्फ एक ही नहीं, और भी हैं. तो उनमें से दो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और आपके सिलेबस में भी हैं वो है, पहला है केस फेटेलिटी रेट CFR और दूसरा है प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेशियो PMR. तो इन दोनों पे हम चर्चा करेंगे. पहले हम क्या विज्ञान में बात छेड़ दी है तो हम CFR की बात कर लेते हैं, केस फेटेलिटी रेट. नाउ केस फेटेलिटी रेट होता क्या है? Case fatality rate or CR is the percentage of cases, ध्यान से सुनिएगा, percentage of cases that result in death. यानी उन केसेस का प्रतिशत जो कि मृत्यु से जिनका अंत होता है. यानी अगर कोविड-19 के मान लीजिए 1 लाख केसेस हुए भारत में, तो उनमें से कुल कितने लोगों की मृत्यु हुई, वो परसेंटेज जब आप निकालेंगे तो वो केस फेटेलिटी रेट हो जाएगा. यानी कोविड-19 से पीड़ित होने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या तो आपको पता है, और उनमें से कितने लोगों की मृत्यु हुई, यानी कि बाकी तो ठीक हो गए होंगे ना, मृत्यु कुछ ही लोगों की हुई. तो आप न्यूज़पेपर्स में और न्यूज में अक्सर सुनते भी होंगे कि केस फेटेलिटी रेट कोविड-19 में बहुत कम है, 3% है. यानी कि अगर मान लीजिए 100 लोगों को कोविड-19 होता है तो इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे में सिर्फ 3 ही लोगों की मृत्यु हो रही है पूरी जनसंख्या में, आबादी में. तो इसको बोलते हैं केस फेटेलिटी रेट. ये ध्यान रखिएगा, ये CSMR यानी कॉस्ट स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट से अलग है. कॉस्ट स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट करते वक्त आप कुल जनसंख्या को डिनोमिनेटर में लेंगे. डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं? अंश और हर. हर जो लोग हिंदी में समझते हैं तो न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं. तो अंश अपॉन हर होता है, राइट. तो जब आप हर में कुल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या लेते हैं तो वो आप कॉस्ट स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं. जब आप हर में किसी एक पर्टिकुलर बीमारी से होने वाली मृत्यु, तो न्यूमरेटर में वो दोनों समान है. न्यूमरेटर में किसी एक बीमारी से होने वाली कुल मृत्यु की संख्या, तो कोविड-19 से होने वाली कुल मृत्यु की संख्या न्यूमरेटर में हो गई, यानी अंश में हो गई. और हर में अब आप अगर कॉस्ट स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में टोटल पॉपुलेशन या कुल जनसंख्या हो जाएगी, अगर आप भारत के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं लेट्स से. और अगर आप केस फेटेलिटी रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि कोविड-19 इन्फेक्शन से पीड़ित होने वाले जिनके शरीर में इन्फेक्शन आ गया, वो कोविड-19 पॉजिटिव है, उनमें से कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, ये अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोविड-19 आप डिनोमिनेटर में लेंगे. यानी टोटल नंबर ऑफ ऐसे कुल व्यक्तियों की संख्या जिन्हें कोविड-19 हुआ, उनमें से कितने की मृत्यु हो गई, ये केस फेटेलिटी रेट होता है. तो क्योंकि केस फेटेलिटी रेट हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, इसलिए इस केस में मल्टीप्लायर क्या होगा? 100. Very good. Yes, because you always express case fatality rate in percentage, so in this case the multiplier would always be 100. So total number of deaths due to COVID-19 or disease X upon total number of cases of COVID-19 or any other disease X or Y into multiplier, that is 100. So CFR is always expressed in percentage. इतना आ गया समझ में आपको? आ गया? Yes, ma'am. Okay, good. So CFR is a measure of the severity of a disease and is directly related to the virulence of the disease agent. यानी ये बताता है कि कोई किसी बीमारी की सिवियरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं कि भयावहता, घातकता, उसकी वजह से मृत्यु होने की संभावना कितनी है. ठीक है ना. एक जब आप CSMR कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कॉस्ट स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, तो वो आपको ये बताता है कि कुल जनसंख्या में इस बीमारी की वजह से कितने लोगों की मृत्यु हुई. यानी प्रति 1000, जब आप जैसे मान लीजिए इसको आप ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि प्रति 1000 भारतीयों में 20 लोगों की मृत्यु डायबिटीज की वजह से होती है.
ये तो तय है कि वो 1000 में से सारे 1000 की मृत्यु होगी, है ना, मृत्यु से तो कोई नहीं बच सकता, लेकिन प्रति 1000 भारतीयों में 20 की मृत्यु डायबिटीज की वजह से हुई पिछले साल। ये जब आप बोलते हैं यानी हर 1000 भारतीयों पे 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई डायबिटीज की वजह से, ये हो गया CSMR यानी कॉज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। अब जब आप केस फेटेलिटी रेट ले रहे हैं यानी कि डायबिटीज से पीड़ित होने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या अपॉन total number of deaths due to diabetes upon total number of cases of diabetes, of prevalent cases in diabetes in that year into multiplier जब आप लेंगे तो ये आपको केस फेटेलिटी रेट दे देगा। ओके, ठीक है, ये याद रखिएगा कि CSMR हो या CFR हो, कभी भी आप कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो टाइम पीरियड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए सेम होना चाहिए, यानी टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर upon total population during that same year होगा CSMR में of total number of deaths due to a particular disease in a particular year upon total number of cases diagnosed or prevalent during the same year। ये याद रखिएगा, यानी अगर 6 महीने न्यूमरेटर में है तो वही 6 महीने के लिए जो आंकड़ा होगा डिनोमिनेटर में उतना ही आप अकाउंट फॉर करेंगे। ये नहीं कि डिनोमिनेटर में आप 1 साल की जनसंख्या ले लेंगे। अगर न्यूमरेटर आपका 6 महीने में होने वाली मृत्यु को अकाउंट फॉर कर रहा है तो डिनोमिनेटर में भी 6 महीने में ही जो जनसंख्या है वही अकाउंटेड फॉर होगी। और अगर कोविड-19 के केसेस आप पिछले 1 महीने के लिए केस फेटेलिटी रेट ले रहे हैं तो केस फेटेलिटी रेट यानी टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू कोविड-19 लास्ट मंथ अपॉन total cases of COVID-19 last month, okay, total diagnosed or prevalent cases of COVID-19 last month, उतना ही आप लेंगे। ये नहीं कि न्यूमरेटर में 1 महीने का लेंगे और डिनोमिनेटर में 6 महीने का लेंगे, तो टाइम पीरियड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए समान होना चाहिए। ये एक गलती करते हैं स्टूडेंट्स, जब कैलकुलेशन उनको दी जाती है तो वो ध्यान नहीं देते हैं। हो सकता है कि मैंने आपको जनसंख्या 6 महीने, 1 साल, 2 साल सबके लिए दे दी हो कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो न्यूमरेटर की वैल्यू जितने टाइम पीरियड के लिए लेंगे डिनोमिनेटर की वैल्यू भी उतने ही टाइम पीरियड के लिए लेंगे। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ डेथ्स, CFR की बात कर रही हूँ, बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम पर्टिकुलर डिजीज इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम बाय द नंबर ऑफ केसेस ऑफ दैट सेम डिजीज इन द सेम टाइम पीरियड। इतना समझ में आ गया आपको? CFR समझ में आ गया आपको? Yes, ma'am. Good. जब ऐसा आप करेंगे, when you will divide the total number of deaths from particular disease in a specified time period by the number of cases of that same disease in the same time period, you will get a fraction. कोई एक fraction मिलेगा ना आपको। Now this resulting fraction is then multiplied by 100, and why is it multiplied by 100? Because you always express CFR as in percentage. So, since it is reported as a percentage, so for example, if let's say there are 200 cases of COVID-19, okay, last month there were 200 cases of COVID-19 last month, and out of them 10 resulted in death. So the CFR would be total number of deaths कितनी हो गई? 10 upon total number of cases of COVID-19, 200, 10 upon 200 into multiplier इस केस में 100 होगा, तो 10 upon 200 ये आपको एक फ्रैक्शन मिला। 10 upon 200 को जब आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपको परसेंटेज मिल गया, यानी कि ये कितना आएगा? 5%। ठीक है, सो 5% केसेस ऑफ कोविड-19 रिजल्ट इन डेथ, यानी कोविड-19 के 5% केसेस में मृत्यु हो जाती है। अगर कोविड-19 किसी को हुआ तो 5% संभावना है कि उसकी मृत्यु हो जाए, या इसको दूसरे तरीके से भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कोविड-19 होने वाले कुल लोगों में 5% व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो दूसरा स्पेसिफिक रेट है, प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेशियो या PMR। अब PMR, व्हाट डज PMR मीन? So PMR describes the relationship between the number of deaths, ध्यान से सुनिएगा, relationship between the number of deaths from a specific cause, किसी एक विशिष्ट कारण की वजह से होने वाली कुल मृत्यु की संख्या का रिलेशन, का संबंध किसके साथ बता रहा है? To the total number of deaths attributable to all causes. So number of deaths from a specific cause upon total number of deaths from all causes, यानी
जैसे मान लीजिए आप ये जानना चाहते हैं फॉर एग्जांपल प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेशियो। प्रोपोर्शन का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ लास्ट क्लास में। प्रोपोर्शन का मतलब होता है द रिलेशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी एक कुल होल में से, होल माने WHOLE वाला होल, संपूर्ण में से एक अंश का भाग का मैग्नीट्यूड कितना है, ये प्रोपोर्शन जब आप निकालेंगे तो इसी को प्रोपोर्शन बोलते हैं, अनुपात। प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं? अनुपात ही बोलते हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन के लिए हिंदी में अनुपात ही आता है, दोनों के लिए एक ही शब्द है अनुपात। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने पिज्जा खाया तो पिज्जा में 6 पीसेस हुए हैं, पिज्जा के 6 पीसेस हैं, तो उसमें से 2 अगर आपने खाए तो आपका प्रोपोर्शन हो गया, जो आपने खाया पिज्जा का प्रोपोर्शन वो हो गया 2/6, तो 1/3 हो गया। ये आपका प्रोपोर्शन है। और इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये प्रोपोर्शन परसेंटेज हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेशियो ये बताता है आपको कि मान लीजिए किसी देश में आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कोविड-19 से होने भारत में कुल मौतें जितनी भी हुई पिछले साल, या अभी ये साल खत्म नहीं हुआ है, मान लीजिए हम जनवरी 2021 में ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि 2020 में भारत में कुल कितनी मौतें हुई, तो ये तो आंकड़ा आपको मिल जाएगा सरकारी उससे, डेथ रजिस्ट्री से, कि भारत में पिछले साल 2020 में कुल कितनी मौतें हुई। अब आप ये जानना चाहते हैं कि इतनी तो मौतें पिछले साल हुई, ये सभी कारणों की वजह से हुई, कोई जरूरी नहीं कि ये सारी मौतें कोविड-19 की वजह से ही हुई, अन्य कारणों से भी लोगों की मृत्यु होती है। अब आप अगर ये जानना चाहते हैं कि इन कुल मौतों में से कितनी मौतें कोविड-19 की वजह से हुई और कोविड-19 ने कुल मौतों में कितना कंट्रीब्यूट किया, तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेशियो। ये आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कॉज्ड बाय कोविड-19 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम ऑल कॉजेज, यानी कुल होने वाली मृत्यु की संख्या। तो डिनोमिनेटर में कुल मौतें होंगी, न्यूमरेटर में कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या होगी, यानी कोविड-19 से होने वाली कुल मृत्यु की संख्या अपॉन देश में उसी टाइम पीरियड में, यानी कि अगर हम पिछले साल का टाइम पीरियड ले रहे हैं तो देश में 2020 में होने वाली कुल मौतों की संख्या। मान लीजिए कि देश में 2020 में 1 लाख लोग मरे सभी कारणों से, 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, पिछले साल 1 लाख लोग मर गए देश में। अब उन 1 लाख लोगों में से कोविड-19 ने कितना कंट्रीब्यूट किया? मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि 50,000 लोग कोविड-19 की वजह से मरे, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, दूसरे कारणों से भी लोग मरते हैं। तो 50,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेशियो। तो 50,000 अपॉन 1 लाख कितना हो गया? 1/2 इंटू 100 कितना हो गया? 50%, यानी 50% कुल मौतों में कोविड-19 ने 50% कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, यानी देश में सभी कारणों से होने वाली कुल मौतों में से 50% अकेले कोविड-19 की वजह से हुई। ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है भैया, इसको सच मत मान लीजिएगा, ठीक है ना? ये हाइपोथेटिकल डेटा है, उसके हाइपोथेटिकल काउंट्स को लेकर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि कोविड-19 ने 50% कंट्रीब्यूशन दिया है amongst deaths from all causes। तो ये PMR समझ में आ गया आपको स्टूडेंट्स? प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेशियो समझ में आ गया? मैम कोई एक और एग्जांपल दे दीजिए जी। मैम कोई एक और एग्जांपल से, किसी एक और एग्जांपल से? अच्छा, जैसे मान लीजिए अच्छा मैम, अगर जैसे रोड एक्सीडेंट के लिए निकालते हैं हाँ, तो प्रोपोर्शनेट निकालेंगे तो बिल्कुल, टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू ऑल केसेस करके निकालेंगे। yes, पर आप एग्जैक्टली इसका मतलब आपको समझ में। So if you want to calculate the proportionate mortality for road accidents in India, ठीक है, with the total number of deaths in India last year, तो आप total number of deaths due to road accidents in 2020, okay, upon total number of deaths from all causes in 2020 into 100, because PMR is also always expressed as a percentage. So in this case also, just like CFR, the multiplier is always taken as 100, ठीक है? ओके मैम। तो आगे आपको CFR और PMR समझ में आ गया आपको स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. good. So
I'll again repeat, summarize. So CFR is the percentage of cases, or case fatality rate is the percentage of cases that result in death. And proportionate mortality ratio, or PMR, is the percentage of overall mortality in a population in a so that is attributable to a particular cause. यानी किसी एक विशेष कारण से होने वाली कुल मौतों के लिए अगर आप किसी कारण को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं तो उसको आप बोलते हैं proportionate mortality ratio. यानी 50% is the PMR in the example that we had taken. So 50% is the PMR for COVID-19 in the Indian population in 2020 for the total number of deaths that occurred in India. यानी कोविड-19 ने 50% कंट्रीब्यूशन दिया भारत में होने वाली कुल मौतों में 2020. ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है जो मैंने लिया था कि 50,000 लोग मर गए कोविड-19 से और कुल मौतों की संख्या है 1 लाख इनटू मल्टीप्लायर. इस केस में आप हमेशा 100 लेंगे क्योंकि सीएफआर और पीएमआर को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं. अगर किसी एक विशिष्ट एग्जांपल में सपोज कैलकुलेशन में मैं आपको दे रही हूँ कि मल्टीप्लायर आपको परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं करना है और अगर मैं मल्टीप्लायर आपको चेंज करने बोल रही हूँ, अगर एग्जामिनर आपको मल्टीप्लायर चेंज करने बोल रहा है और स्पेसिफाई कर रहा है कि मल्टीप्लायर 1000 है या 10,000 है या 1 लाख है, तब आप चेंज करेंगे. until and unless a multiplier is specified in the question, for CFR and PMR you will always take multiplier as 100. okay, ठीक है? ओके मैम. ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है स्पेसिफिक रेट्स में. एज स्पेसिफिक रेट्स कैलकुलेट करना आप समझ गए. आपने एज स्पेसिफिक रेट्स इनफैक्ट कैलकुलेट किए भी थे पिछले वाले एग्जाम्पल में. एज एडजस्टेड डेथ रेट्स कैलकुलेट करते वक्त आपने एज स्पेसिफिक रेट्स कैलकुलेट किए थे. तो अगर आपको एज स्पेसिफिक रेट्स कैलकुलेट करना है, सो यू विल टेक टोटल नंबर ऑफ, लेट्स से आपको एज स्पेसिफिक मॉर्बिडिटी रेट फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करना है या एज स्पेसिफिक रेट्स ड्यू टू, आप ऐसा भी कर सकते हैं. जैसे कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ. स्पेसिफिक रेट्स के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं. आप एक काम करिए, एक टेबल बना लीजिए फॉर इम्पोर्टेंट रेट्स की. एक टेबल बना लीजिए, मैं बनवा देती हूँ, साथ में लिख लीजिए, ठीक है? इम्पोर्टेंट रेट्स टेबल बना लीजिए, उसमें 4 कॉलम बनाइए. पहला कॉलम लिखिए रेट, सेकंड कॉलम लिखिए डेफिनेशन या फॉर्मूला. डेफिनेशन मत लिखिए, फॉर्मूला लिखिए. थर्ड कॉलम में लिखिए मल्टीप्लायर. या फॉर्मूला में ही मल्टीप्लायर आ जाएगा. आप सिर्फ 3 कॉलम बनाइए, रेट, फॉर्मूला और लिखना स्टार्ट कर दीजिए. दो कॉलम्स बनाइए, जस्ट रेट एंड फॉर्मूला. बना लिया आपने? यस मैम. So yeah, right, first rate is crude birth rate. इसका फॉर्मूला बताइए मुझे, मैं आपको लिखवा चुकी हूँ ऑलरेडी. क्रूड बर्थ रेट, The total death count. Birth rate, crude birth rate. Crude death rate. Number of deaths from all causes. Crude birth rate क्या बोल रही हूँ भैया? Total number of birth in a particular time period. अच्छा, birth rate. Upon total number of population in that particular time period into 1000. Yes, good. So multiplier आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? मल्टीप्लायर आप जनरली into 1000 ही लेते हैं. अगर आप परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो 100 ले लेते हैं. और अगर आपकी संख्या बहुत छोटी आ रही है, यानी कि क्रूड बर्थ रेट अगर बहुत कम है, तो आप बड़ा मल्टीप्लायर भी ले सकते हैं, यानी 10,000, ताकि आपको रियल नंबर्स में, होल नंबर्स में एक वैल्यू मिल जाए, ठीक है? डेसिमल्स में ना मिले. तो क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू, बिल्कुल सही बताया अभी क्या है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अपॉन total population. So total population is always written as estimated mid-year population. Okay, number of live births upon estimated mid-year population into multiplier. So in this case, the multiplier is 1000. अब crude death rate का बताइए. Second rate is crude death rate. Number of deaths from all causes upon estimated mid-year population. Very good. Into multiplier. That is 1000 in this case, right? Then age specific death rate का बता दीजिए. Age, third rate is age specific death rate. Total number of death in that particular age specific group. In that particular age group, yes.
Yes, ma'am. Upon total number of death into 1000. No, total number of deaths in that particular Oh. age group upon total population of that particular age group. Sorry, ma'am. ठीक. Upon total population of that particular age group. Okay. जैसे मान लीजिए अगर आपको 15 से 24 साल के लोगों की एज स्पेसिफिक डेथ रेट निकालनी है, तो you will in the numerator you will take number of deaths of in the age group 15 to 24 upon estimated mid-year population of age group 15 to 24. ठीक है, यानी कुल मृत्यु कितनी हुई 15 से 24 साल के लोगों की उस साल में, अपॉन 15 से 24 साल के लोगों की कुल जनसंख्या क्या थी उस विशेष साल में. ठीक है, या उस टाइम पीरियड में. एक साल ही टाइम पीरियड लेना जरूरी नहीं है, टाइम पीरियड 10 साल भी हो सकता है, 6 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है. ठीक है, so age specific death rate is equal to number of deaths in a particular age group upon estimated mid-year population of that particular age group. Okay, into multiplier. Now multiplier could be 1000 or 1 lakh. अब फोर्थ लिखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ये भी आपको बता चुकी हूँ क्लास में. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताइए. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये आपको पिछले साल ही बता चुकी हूँ. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? अपर्णा, अपर्णा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? जल्दी बोलिए. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ये सब बता चुकी हूँ ना आपको. ये तो पिछले साल ही बता चुकी हूँ, पिछले सेमेस्टर में बता चुकी हूँ, पिछले साल नहीं. नंबर ऑफ डेथ्स अंडर 1 year of age अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इनटू मल्टीप्लायर. ये होती है ना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कुल जीवित शिशुओं की संख्या, यानी कुल जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या जिनकी उम्र 1 साल से कम, सॉरी क्या बोल रही हूँ हिंदी में, 1 वर्ष से कम उम्र के कुल शिशुओं की मृत्यु की संख्या अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इनटू 1 लाख. यही होता है ना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. नंबर ऑफ डेथ्स इन द एज ग्रुप, नंबर ऑफ डेथ्स इन द एज ग्रुप 0 to 1 year, यानी 1 वर्ष से कम के कुल शिशुओं की मृत्यु की संख्या अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इनटू मल्टीप्लायर. यही होती है ना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. Yes, ma'am. So number of deaths under 1 year of age upon total number of live births into multiplier, ये होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. फिर से लिख लीजिए, पिछले सेमेस्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं लेकिन सब भूल चुके हैं. अब नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट पर आ जाइए. ये भी पिछले सेमेस्टर में बता चुकी हूँ. क्या होती है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट? नंबर ऑफ डेथ्स अंडर 28 days of age. नियोनेट की डेफिनेशन क्या होती है? 28 दिन से कम उम्र का जो बच्चा होता है उसको नियोनेट बोलते हैं. तो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का मतलब है नंबर ऑफ डेथ्स अंडर 28 days of age अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इनटू मल्टीप्लायर, यानी जो भी 1000, 1 लाख जो भी आप लेना चाहते हैं. ठीक है, लिख लिया आपने? सिर्फ लिख मत लीजिए, इसको ध्यान भी रखा करिए, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ये सब आप पिछले सेमेस्टर में ही बता चुकी हूँ और डिटेल में बता चुकी हूँ. कई क्लासेस लिए मैंने ये समझाने के लिए. तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फिर से बता दीजिए क्या होता है? Ma'am, number of death in age group 0 to 1 year upon total number of live birth into 1000. 1 साल से कम उम्र के बच्चों की जितनी मृत्यु हुई है उसकी संख्या अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स. यानी मान लीजिए 1000 जीवित शिशुओं का जन्म हुआ पिछले साल,
उनमें से कितने बच्चों का 1 वर्ष से कम उम्र की आयु में मृत्यु हो गई पिछले साल। तो 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की होने वाली मृत्यु की संख्या अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इनटू मल्टीप्लायर, दिस इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्योंकि डेफिनेशन होती है a child below 1 year of age। नियोनेट की डेफिनेशन होती है a child below 28 days of age, यानी जन्म के 28वें दिन से पहले उस बच्चे को नियोनेट बोलते हैं। 28वें दिन के बाद वो इन्फेंट कहलाता है। 28वें दिन से लेकर 1 वर्ष पूरा होने तक वो इन्फेंट कहलाता है। नियोनेट को भी आप इन्फेंट कह सकते हैं, लेकिन उस 28 दिनों के भीतर बच्चे को स्पेसिफिक किया गया नियोनेट, तो नवजात शिशु जिसको बोलते हैं। तो नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ under 28 days of age upon total number of live births into multiplier, this is neonatal mortality। अब आ जाते हैं कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट। तो कॉज स्पेसिफिक डेथ को आप मोर्टेलिटी भी बोलते हैं, तो कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट कुछ अलग नहीं, वो CSMR ही है। कॉज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट या कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट भी बोल सकते हैं इसको, तो कंफ्यूज मत होइएगा। डेथ रेट और मोर्टेलिटी रेट सेम है, बर्थ रेट और नेटेलिटी रेट सेम है, और मॉर्बिडिटी रेट या सिकनेस रेट सेम है, ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अभी आपको समझाया था CSMR, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैम, नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज अपॉन टोटल पॉपुलेशन। Yes, very good. Number of deaths due to a particular disease upon total population or estimated median population into multiplier. Okay, into multiplier आप कभी मत भूलिएगा, यानी प्रति कितने व्यक्ति आप ये दर कैलकुलेट कर रहे हैं। मल्टीप्लायर का मतलब है कि आप इसको जब एक्सप्रेस करेंगे, इसका मतलब है कि प्रति 100 व्यक्तियों में इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है इस कारण से, या प्रति 1000 व्यक्तियों में इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है इस कारण से, या इस पर्टिकुलर आयु वर्ग की। तो मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि आप कितने प्रति व्यक्ति ये कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटू 1000 कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटू 1 लाख कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटू 2 लाख कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मल्टीप्लायर लगाना कभी भी फॉर्मूला में मत भूलिएगा, उसके बिना वो सिर्फ एक फ्रैक्शन है, रेट नहीं। अब एज लास्ट होता है एज स्पेसिफिक कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट। ओके, एज लिख लीजिए, एज स्पेसिफिक कॉमा कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट। यहाँ पर आप न सिर्फ विशिष्ट आयु के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, एक विशिष्ट आयु में एक पर्टिकुलर कारण, एक विशेष कारण से होने वाली मृत्यु दर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एज स्पेसिफिक कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, in a particular age group, let's say 15 to 24 years of age, due to a particular cause, let's say due to motor vehicle accident or road accident, 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में के लोगों की मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स या रोड एक्सीडेंट्स से होने वाली कुल मृत्यु की संख्या। एक तो हो गया 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों की होने वाली कुल मृत्यु की संख्या, ये नहीं लेनी है आपको। 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग में होने वाली कुल लोगों की मृत्यु की संख्या तो हो गई एक, जब आप वो तो तब लेंगे जब आप एज स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में होने वाली रोड एक्सीडेंट्स की कुल संख्या से होने वाली मृत्यु की कुल संख्या जब आप लेंगे तो ये हो जाएगी एज स्पेसिफिक काउंट ऑफ डेथ्स ड्यू टू एज स्पेसिफिक कॉज स्पेसिफिक। तो ये इसमें न्यूमरेटर में होगा नंबर ऑफ डेथ्स in the age group 15 to 24 years of age died due to motor vehicle accidents upon, इसमें डिनोमिनेटर में टोटल पॉपुलेशन, डिनोमिनेटर में एज स्पेसिफिक पॉपुलेशन नहीं लेंगे, ना ही कॉज स्पेसिफिक डेथ्स की पॉपुलेशन लेंगे। डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल पॉपुलेशन लेंगे व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग एज स्पेसिफिक कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट। ओके, ये याद रखिएगा। सो लिख लीजिए, इसका फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। एज स्पेसिफिक कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट is equal to, लिख लीजिए, number of deaths in a particular age group, number of deaths in a particular age group due to a particular cause, due to a particular cause upon population या फिर estimated mid-year population, upon estimated mid-year population into multiplier।
इनटू मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर इस केस में आप 1 लाख लिख लीजिए, 1000 भी ले सकते हैं, 1 लाख भी ले सकते हैं। तो जिन देशों में ये आंकड़ा बहुत कम आएगा वो मल्टीप्लायर 1 लाख ले लेंगे, इससे नंबर एक बड़ा नंबर मिलने में सुविधा होगी। जिन देशों में ये आंकड़ा बहुत बड़ा आएगा उसमें वो देश मल्टीप्लायर छोटा ले लेंगे। तो नंबर ऑफ डेथ्स in a particular age group due to a particular cause upon estimated mid-year population or total population into multiply। ये समझ में आ गया आपको? एज स्पेसिफिक, कॉज स्पेसिफिक, डेथ रेट आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. अब यहाँ आप ये भी बता दीजिए, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग एज स्पेसिफिक डेथ रेट तब आप डिनोमिनेटर में क्या लेते हो? जब आप एज स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट कर रहे होते हो, यहाँ तो आपने एज स्पेसिफिक कॉस्ट स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट करते वक्त डिनोमिनेटर में टोटल पॉपुलेशन ली। व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग एज स्पेसिफिक डेथ रेट तब आप डिनोमिनेटर में क्या लेते हो? total number of population of Total that number of particular age, population of that particular age group. टोटल estimated Particular- median population. ठीक है ना, ये लेते हो आप, टोटल पॉपुलेशन नहीं लेते हो एज स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट करते वक्त। So when you are calculating only age specific death rate, the denominator would be the total population in that age group. Whereas when you are calculating cause specific death rate, then also in the denominator you take total population. And Total when you are, population. okay, when you are calculating age specific cause specific death rate, then also the denominator consists of the total population. ये याद रखिएगा, सिर्फ age specific death rate calculate करते वक्त ही you take in the denominator the total population in that age group. Or when you are calculating a sex specific death rate, then the total number of population of that gender or sex in the entire population. Or when you are calculating a race specific death rate, then the total number or the total population of that particular race in the population in question. ये लोगे। लेकिन जब आप कॉस्ट स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट कर रहे हो, या तो वो सिर्फ कॉस्ट स्पेसिफिक डेथ रेट है या एज स्पेसिफिक कॉस्ट स्पेसिफिक डेथ रेट है। तो कॉस्ट स्पेसिफिक डेथ रेट अगर आ जाता है, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल पॉपुलेशन लेंगे, ये याद रखिए। ओके ओके। यस मैम। और केस पे जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तब आप टोटल नंबर ऑफ केसेस कॉज ड्यू टू दैट पर्टिकुलर डिजीज लेंगे। सिर्फ स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट करते वक्त ही आप टोटल पॉपुलेशन लेंगे डिनोमिनेटर। ओके यस मैम। हाँ, तो कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, जो कि स्पेसिफिक तो है, स्पेसिफिक रेट है। मैंने आपको बताया था कि क्रूड रेट वो रेट्स होते हैं जिनमें आप डिनोमिनेटर में टोटल पॉपुलेशन देते हैं। टोटल पॉपुलेशन। स्पेसिफिक रेट्स में भी कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट एक एक्सेप्शन है जिसमें आप डिनोमिनेटर में टोटल पॉपुलेशन देते हैं, ऑल्दो इट इज अ स्पेसिफिक रेट एंड नॉट अ क्रूड रेट। ओके, ठीक है। अच्छा, आपको मुझे एक पता नहीं, कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर होगी, कुछ लोगों के लिए बुरी खबर होगी। कल मैं आपका मिड सेम टेस्ट लेने वाली थी ना, लेने वाली थी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कल कुछ लोगों ने बहुत भगवान को जाके लड्डू वड्डू चढ़ाए, तो कल गजेटेड हॉलीडे हो गया है। मतलब हो क्या गया है ही, पहले से ही था डिक्लेयर, तो देखा नहीं था मैंने हॉलीडे लिस्ट। तो कल क्योंकि एक गजेटेड हॉलीडे है, गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस है शायद, तो छुट्टी है, इसलिए कल टेस्ट नहीं होगा। वेंसडे को जब आप लोग आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्लासेस वेंसडे को होंगी ना इंस्टीट्यूट में, तो मैं आप Yes, ma'am. वेंसडे को लूंगी और आपका टेस्ट का होगा 2 से 3, ठीक है। Okay. का टाइम 2 से 3 है वेंसडे, 2 बजे से 3 बजे वेंसडे। मैं कुल 3 मिड सेम टेस्ट लूंगी, इसलिए 3 लूंगी क्योंकि आप में से कई लोग बाहर हैं और उनको तुरंत एकदम से आ पाना संभव नहीं होगा, इसलिए मैं 3 में 15 नंबर के, 3 में से आपको किन्हीं 2 में अपीयर होना है फॉर गिविंग योर मिड सेम टेस्ट वर्थ 30 मार्क्स। तो अगर आप सिर्फ 1 में अपीयर होंगे तो आप सिर्फ 15 में से मिलेंगे। अगर आप 2 में अपीयर होंगे तो आपके कुल 30 मार्क्स कवर हो जाएंगे, तो आपका मिड सेम 30 मार्क्स का ओवर हो जाएगा। 3 में अपीयर होने की किसी को जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 में अपीयर होना है। आपकी सुविधा के
आप जिस पे आ सकते हो, जो लोग वेडनेसडे को आ सकते हैं वो वेडनेसडे को अगर टेस्ट दे लें तो उनका एक टेस्ट समाप्त हो जाएगा, दूसरा टेस्ट बचा रहेगा, वो में से कभी भी दे सकते हैं। तो तीन में से कुल 2 टेस्ट आप देते हैं। 3 मिनट से मैम सेकंड टेस्ट, मैम सेकंड टेस्ट कब होगा? सेकंड टेस्ट की डेट मैं आपको जब टेस्ट लेने आऊंगी ना वेडनेसडे को तब बताऊंगी, ठीक है? ओके मैम। हाँ, मैम अगर तीनों में अपीयर हो बेस्ट 2 के मार्क्स अगर आप मैं कंसिडर कर लेती हूँ, अगर मैम एक मैम सैटरडे को अंजलि मैम का भी टेस्ट है। हाँ, पता है मुझे सैटरडे को अंजलि मैम का टेस्ट, तो वेडनेसडे को ले रही हूँ ना मैं सैटरडे को थोड़ी ले रही हूँ। मैम वेडनेसडे वाला नहीं अटेंड कर पाएंगे, सैटरडे तक आ पाएंगे। जी मैम सैटरडे तक आ पाएंगे, यहाँ तो बाहर से आए। मैंने ये आपका अपना कॉल है ना, आपको कौन से 2 में अपीयर होना है। यस मैम। मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि आपको आना जरूरी है वेडनेसडे वाले में, आपको तीनों में से 2 ही देने हैं, 2 देंगे तो आपके 30 मार्क्स कवर हो जाएंगे। आप चाहिए तो तीनों में से एक भी नहीं दीजिए, चाहिए तो एक ही दीजिए, वो आपके ऊपर है कि आप देना चाहते हैं। और अगर कोई तीनों के तीनों देता है तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को टेस्ट देने से मना करूंगी। Let's say a person appears in all the 3 tests, one of the students appears in all of the 3 tests, तो उनके जो 2 बेस्ट मार्क्स होंगे, जो बेस्ट परफॉर्मेंस होंगे, वो मार्क्स मैं उनके मिड सेम में डाल दूंगी। पहले टेस्ट में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए और बाद के दोनों में भी वो अपीयर करते हैं, करना चाहते हैं और करते हैं, तो मैं उनको रोकूंगी नहीं। और जो पहले और तीसरे में अगर आपकी बेस्ट नंबर है तो मैं उनको कंसिडर कर लूंगी, दूसरे तीसरे में बेस्ट है तो उनको कंसिडर कर लूंगी, या पहले दूसरे में बेस्ट है तो तीनों अगर आप देते हैं तो तीनों में से जिन 2 में आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है वो 2 बेस्ट मार्क्स मैं कंसिडर कर लूंगी। मैम अगर आप भी सैटरडे को टेस्ट ले लें तो हम लोगों के लिए थोड़ा इजी होता है, एक ही दिन अगर दोनों टेस्ट हो जाते तो, क्योंकि बाहर से आएंगे। तो ठीक है कि मैं सैटरडे को टेस्ट ले लूं, लेकिन 2 टेस्ट आप लोग एक साथ ले देना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम। अगर 2 टेस्ट आप लोग एक साथ देना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जनरली स्टूडेंट देना नहीं चाहते हैं। नो मैम। हाँ, मेरे ख्याल से अलग अलग ही रखना चाहिए, मेरे ख्याल से अलग अलग ही रखना चाहिए। जी मैम, अलग अलग ही ठीक है जी ठीक है, तो अलग अलग ही रखते हैं। वेडनेसडे को मैं ले लेती हूँ, सैटरडे को अंजलि मैम का है, और बाकी 2 टेस्ट की डेट मैं आपको अनाउंस कर दूंगी। और इसके अलावा अगर कोई तीनों टेस्ट में अपीयर होता है तो मैं उस स्टूडेंट को, उनको ये एडवांटेज तो है ही कि उनके 2 बेस्ट जो भी टेस्ट के मार्क्स हैं वो काउंट हो जाएंगे। एक जो उन तीनों में खराब है उसको मैं निगलेक्ट कर दूंगी, तीनों में जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वही लूंगी, प्लस जो तीनों में अपीयर होगा उनको मैं 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दूंगी। टोटल जो उनका 30 मार्क्स का मिड सेम है उसमें प्लस 5 मार्क्स उनको मिल जाएंगे जो तीनों में अपीयर हो रहा है। ओके, क्योंकि इस बार अटेंडेंस के मार्क्स नहीं दिए जा रहे हैं, क्लास इवैल्यूएशन में चेंज कर दिया गया है, तो वो क्लास इवैल्यूएशन क्योंकि वो तीनों में अपीयर होंगे तो वो अटेंडेंस जैसा ही है, इसलिए मैं उनको जो तीनों में अपीयर होंगे उनको प्लस 5 मार्क्स कर दूंगी मिड सेम में। ओके, आउट ऑफ दैट 30। ठीक है, थैंक यू मैम, आई एम सॉरी फॉर नॉट आंसरिंग। सॉरी किसने बोला, क्या बोला? मैम आपने वो क्वेश्चन पूछा था ना IMR एंड देन अरे कोई बात नहीं, वो ठीक है, मतलब मैंने सिर्फ आपसे नहीं पूछा, जनरली पूछा है, वो तो आपका नाम मुझे सामने दिख गया तो मैंने आपसे पूछ लिया। मतलब पिछले सेमेस्टर में पढ़ा चुके हैं इसलिए आपको याद रहे, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको याद रहना चाहिए इन्फेंट मोर्टेलिटी। यस, चलिए, सारी चीजें तो होती नहीं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब हम आ जाते हैं, एक बार फिर से आपने लिख लिया ना, डेफिनेशन लिख लीजिए, केस फेटल एक करिए, स्पेसिफिक रेट की डेफिनेशन लिख लीजिए, रेट की डेफिनेशन लिख लीजिए। A rate that measures morbidity or mortality, a rate that measures morbidity or mortality for particular populations or diseases, a rate that measures morbidity or mortality for particular populations or diseases, यानी विशेष जनसंख्या, विशेष आबादी, जैसे कि एज स्पेसिफिक पॉपुलेशन, सेक्स स्पेसिफिक पॉपुलेशन, इनके लिए जब बीमारी या मृत्यु दर कैलकुलेट की जाती है तो उसको स्पेसिफिक रेट या विशेष दरें या विशिष्ट दरें कहते हैं।
So specific rate is a rate that measures morbidity or mortality for particular populations or disease. And cause-specific mortality rate or CSMR is the death rate due to a particular disease. The death rate due to a particular disease. अब लिख लीजिए केस फेटेलिटी रेट CFR. केस फेटेलिटी रेट CFR लिख लीजिए. The percentage of cases of a particular disease that result in death. The percentage of cases of a particular disease that result in death. अब लिख लीजिए proportionate mortality ratio या PMR की definition. Proportionate mortality ratio or PMR. The percentage of overall mortality in a population. The percentage of overall mortality in a population that is attributable to a particular cause. The percentage of overall mortality in a population that is attributable to a particular cause. That is attributable to a particular cause. लिख लिया आपने? Yes, ma'am. ओके. अब हम नेक्स्ट, ये हमारा कंप्लीट हो गया. हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? एक बार जरा पन्ने पलट के बताइए क्या क्या पढ़ लिया इसमें. Importance of rates पढ़ लिया. Then Yes, ma'am. we discussed the incidence rate, prevalence rate and attack rates. Yes, Then ma'am. we discussed crude and age adjusted rates. We learned how to calculate crude rates. We also learned how to calculate age adjusted rates. Then we learned about some specific rates, for example, cause specific mortality rate, age specific death rate, or case fatality CFR, or mortality PMR. Now, in next comes to reporting of births, deaths, and diseases. तो यानी जन्म और रिपोर्टिंग कैसे की जाती है ये हम सीखेंगे. आपने नोटिफाइबल डिजीज के बारे में सुना है? नोटिफाइबल डिजीज जानते हैं आप लोग नोटिफाइबल डिजीज के बारे में? No, ma'am. Notifiable disease are those infectious diseases that can become epidemic. TB. For example, malaria, dengue. ठीक है, ये epidemic proportions attain कर सकती हैं और इसलिए lawfully ये जरूरी कर देती है सरकार, मैंडेटरी कर देती है कि ऐसी डिजीजेस का इंसिडेंस हमेशा रिपोर्ट किया जाए सरकार को. एक मिनट के लिए मैं क्लास यहीं पर एंड कर रही हूँ. ठीक है, कोऑर्डिनेटर मैम का फोन आ रहा है तो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ मीटिंग. ओके, आज की क्लास मैं यहीं पर खत्म कर रही हूँ. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am.